Students, in previous video lecture I have talked about mechanism of action and the side effects of various antihypertensive drug, like we have discussed the angiotensin converting enzyme inhibitors and we have discussed the alpha blockers and angiotensin receptor blocker. In today's we will talk about the diuretics and calcium channel blocker. So, starting from the diuretics, that how the diuretics plays a antihypertensive action. As we know, the diuretics is responsible for excretion of net volume of urine from the vascular compartment. Like, let's suppose this is capillary, this is whole vascular system, this is whole vascular system, and through the vascular system there will be certain amount of blood. That blood will be filtered by the nephrons, and through the nephrons ultimately it filtrate of the blood from through the nephron forms urinary output. It means whatever the filtrate we are getting that are coming from vascular compartment means blood. It means all the diuretics, and the diuretics are the drug who are responsible for increasing the filtration rate, so that they will increase the volume of urine, and ultimately initially the volume of this urine is formed by the formed from the filtration of this blood. That's why if we increase the volume of urine, it means we will decrease the volume of blood. If we increase the volume of urine, अगर हम यूरिन का एक्सक्रीशन बढ़ाते हैं, वॉल्यूम बढ़ाते हैं, तो वो ओवरऑल फिल्ट्रेट कहां से हो रही है? वेस्कुलर कंपार्टमेंट से, ब्लड से. इट मींस यूरिनरी एक्सक्रीशन अगर बढ़ेगा तो ओवरऑल ब्लड वॉल्यूम कम होगा. इस मैकेनिज्म को, इस कॉन्सेप्ट में ध्यान में रखते हुए, अब चूंकि यूरिनरी एक्सक्रीशन में जो वॉल्यूम होता है उसमें कई सारे आयंस होंगे, मेनली सोडियम आयंस होता है, तो वो आयंस अपने साथ वाटर मॉलिक्यूल को हुक करके लाएंगे और ओवरऑल यूरिन का एक्सक्रीशन होगा. तो व्हेन वी टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डायूरेटिक्स, the diuretics perform the antihypertensive action in two terms, depending on whether we are talking about the short term mechanism of diuretics or if we are talking about long term mechanism of diuretics. Both are ultimately responsible for decrease in BP, blood pressure को कम करेंगे. If we talk about the short term regulation, then short term effect of the diuretics that we have discussed from here, blood volume will be less after the intake of diuretics, and the diuretics is responsible for ultimately increase the excretion of what? Sodium and water excretion, even more ions, even potassium also, magnesium also, calcium also, depending on the specific diuretics. So if these ions will be excreted in the urine, the volume of the blood become less. If the volume of the blood become less, there will be decrease in cardiac output, and decrease in cardiac output result in decrease in blood pressure. This is short term effect of diuretics. If we talk about the long term effect, long term में diuretics BP को जो ओवरऑल BP को कम करना है, तो ब्लड प्रेशर को कम करने की अगर लॉन्ग टर्म में बात करें, तो लॉन्ग टर्म में अगर हम वेस्कुलर स्मूथ मसल की बात करें, बिकॉज दीज आयंस, इफ वी टॉक अबाउट स्पेसिफिक टू द सोडियम, दीज आयंस आर अल्टीमेटली कमिंग फ्रॉम द बॉडी, एंड इन द बॉडी इफ लॉन्ग टर्म वी आर टेकिंग डायूरेटिक्स, देन देयर विल बी progressively depletion of the sodium ion, and when the depletion of the sodium ions occurs in the smooth muscle after a certain time duration, then the smooth muscle content of the sodium ion will be decreased, means decreased sodium content of smooth muscle cell. And if the content of sodium smooth muscle cells become decreased, अगर किसी सेल्स में सोडियम आयन का कंसंट्रेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम आयन का कंसंट्रेशन कम है,
it means there will not be working of any depolarizing current, because depolarizing current in the smooth muscle is dependent on the sodium ion. If that current, that action potential will not be occurred, it means there will be decreased sensitivity of coming action potential. एक्शन पोटेंशियल जो भी ट्रेवल होकर इस पर्टिकुलर स्मूथ मसल में आएगा, ड्यू टू डिक्रीज इन द लेवल ऑफ सोडियम, दिस विल डिक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ दैट एक्शन पोटेंशियल. तो जो वैसोप्रेसर्स हैं, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, उनका एक्शन पोटेंशियल अब सेंस नहीं होगा बिकॉज सोडियम आयन ऑलरेडी लेस है. तो दैट अल्टीमेटली रिजल्ट इन, इफ वैसोप्रेसर इफेक्ट विल नॉट बी अकर, एक्शन पोटेंशियल थ्रू द वैसोप्रेसर विल नॉट बी अकर, देयर विल बी डिक्रीज इन टोटल पेरिफेरल resistance. And if the total peripheral resistance will decrease, as we have discussed in previous lecture as well, there will be ultimately decrease in BP. So this is the mechanism of diuretics. How does the diuretics plays a role in antihypertensive mechanism? So you have to write in examination that there are two ways, in short term effect and in the long term effect. Now we will talk about the side effects due to the use of diuretics. वेरी सिंपल, आपको साइड इफेक्ट्स कोई भी याद नहीं करने हैं, उनको कॉन्सेप्चुअली समझना है कि ऐसा क्यों. जैसे अगर हम डायूरेटिक्स ले रहे हैं तो एक चीज क्लियर हुई कि यूरिनरी वॉल्यूम हमारा बढ़ रहा है और ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है. तो जब ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो उसकी ऑस्मोलैलिटी, उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो वो क्या बढ़ेगी, उसकी ऑस्मोलैलिटी. और जब ऑस्मोलैलिटी बढ़ेगी तो ऑस्मोलैलिटी को सेंस करने के लिए हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेटरी रिसेप्टर्स. एंटेरोवेंट्रल पार्ट में होते हैं, इन द हाइपोथैलेमस. इन द एंटेरोवेंट्रल पार्ट ऑफ द हाइपोथैलेमस, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑस्मोलैरिटी सेंसिंग रिसेप्टर विच इज नोन एज ऑस्मोरिसेप्टर, when sensed that there is decrease in the content of sodium and various ions, and due to decrease in these ions the osmolality of the blood becomes high, and when this osmolality is sensed by the osmolality receptors, there will be direct release of ADH hormone, anti-diuretic hormone. तो ये डायूरेसिस मैकेनिज्म को क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे. डायूरेसिस मैकेनिज्म को क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे. इसके अलावा एंटी डायूरेटिक हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसिटाइजिंग द हाइपोथैलेमस सो दैट देयर विल बी फीलिंग ऑफ मोर थर्स्ट. आपको ज्यादा प्यास लगने की फीलिंग आएगी, जिससे आप वाटर का इंटेक करें और वो जो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, ऑस्मोलैलिटी बढ़ी है, उसका डाइल्यूशन हो सके और वॉल्यूम उसका ऑस्मोलैलिटी एक नॉर्मल सेट पॉइंट पे जा सके. तो ये आपकी फीलिंग थ्रू द हाइपोथैलेमस किसकी फीलिंग बढ़ाएंगे, आपकी थर्स्ट की. तो आपको ये टेक्निकली आपको जानना है कि डायूरेटिक्स का एक साइड इफेक्ट है थर्स्ट. अब हम बात करेंगे ब्लड शुगर की. डायूरेटिक्स के केस में अगर हम ब्लड शुगर की बात करें तो डायूरेटिक्स जो होते हैं वो मेनली थायाजाइड डायूरेटिक्स, ये डिक्रीज करते हैं इंसुलिन के रिलीज को, एंड ऑल्सो डिक्रीज द ग्लूकोज अपटेक इन सेल्स. देखिए इन दोनों चीजों को समझिए कि अगर डायूरेटिक्स का साइड इफेक्ट है इंक्रीज इन ब्लड शुगर, तो वो कैसे है. ब्लड शुगर अगर इंक्रीज कर, देखिए अगर इंसुलिन का रिलीज कम कर रहे हैं, व्हाट इज द वर्क ऑफ इंसुलिन, टू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन. अगर ये नहीं है, इट मींस ग्लूकोज का लेवल ज्यादा है, इट मींस पॉसिबिलिटी है ब्लड में शुगर का रेस करने की. ये कंडीशन से आपका ये सेटिस्फैक्टरी मतलब जस्टिफाइड हुआ. उसके बाद हम बात करेंगे ये ग्लूकोज अपटेक को सेल्स में क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं. तो अगर किसी सेल्स में ग्लूकोज का अपटेक नहीं हो रहा है, इट मींस वो ब्लड वेसल, ये वेस्कुलर कंपार्टमेंट है, उसके पैरेलली ये सेल्स हैं. वेस्कुलर कंपार्टमेंट में क्या फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, और यहां से ग्लूकोज का अपटेक नहीं हो रहा है नियर बाई सेल्स में. तो अगर इसमें नियर बाई सेल्स में ग्लूकोज का अपटेक डिक्रीज कर दिया गया ड्यू टू द डायूरेटिक्स, देन रिटेन रहेगा ग्लूकोज कहां पर, वेस्कुलर कंपार्टमेंट में, देन अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन ब्लड शुगर. एंड इसका कॉन्सेप्ट भी यहीं से आता है कि डायूरेटिक का साइड इफेक्ट कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करना भी है. वो कैसे, अगर ये ग्लूकोज के अपटेक को इनहिबिट करेगा डायूरेटिक्स,
तो ग्लूकोज का अपटेक नहीं होगा, इट मीन सेल एनी हाई वांट्स टू टेक एनर्जी। तो ग्लूकोज से अगर कार्बोहाइड्रेट से उसको एनर्जी नहीं मिल पा रही है तो किसको यूटिलाइज करेंगे, फैट को। एंड वंस द फैट विल बी यूटिलाइज्ड एज द एनर्जी सोर्स, देयर विल बी आफ्टर मेटाबॉलिज्म फैटी एसिड इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लिसरॉल एंड दैट विल रिजल्ट इन द इंक्रीज इन कोलेस्ट्रॉल एज वेल। सो दीज आर थर्स्ट ब्लड शुगर इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल। नाउ वी विल टॉक अबाउट how the muscle cramp occur. Normally the diuretics are responsible for the excretion of certain volume of the urine along with various ions. So like if we talk about, this is a muscle cell and this muscle cells having a lots of iron, but by the using diuretics there will be lesser amount of diuretics, and if there is, by using the diuretics there will be increased excretion of sodium, and in this muscle cell there will be also decreased sodium because all the sodium has been excreted here maximally. तो जब सोडियम यहाँ पर लेवल डिक्रीज हो गया, इट मीन्स देयर, और यहाँ पे कई तरीके के क्या होंगे, कैल्शियम एक्सचेंजर दैट वर्क्स टू थ्रो आउट द कैल्शियम आउटसाइड एंड पैरेलली दे टेक द कैल्शियम इनसाइड। तो जब सोडियम का लेवल डायोटिक्स के केस में इंक्रीज बाहर निकल गया यूरिन में, तो यहां पर सोडियम का लेवल कम हुआ। तो जब सोडियम का लेवल कम है तो क्या ये सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इट मींस कैल्शियम ऑलरेडी कहां पे रहेगा, मसल्स में, एंड कैल्शियम इज द आयंस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस वेयर दे रेजाइड। तो एज सून एज देयर विल बी लेवल इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कैल्शियम, देयर will be probably the continuous contraction due to increase in the cytosolic calcium occur, that results in muscle cramp. Now we will talk about the gout. डायोटिक्स में क्या है, डायोटिक्स में आपका यूरिनरी वॉल्यूम सेम हम बात करेंगे। तो क्या हो गया, ऑस्मोलैरिटी ब्लड की बढ़ चुकी है, ऑस्मोलैरिटी बढ़ चुकी है, इट मीन ब्लड का कंसंट्रेशन बढ़ चुका है। तो ब्लड का कंसंट्रेशन बढ़ चुका तो कुछ लाइक यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हैं, उनके प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि वो एज इट इज क्रिस्टल फॉर्म में डिपॉजिट होने की, तो वो कई बार आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं गाउट की। सो दिस इज ऑल अबाउट डायूरेटिक्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इन द नेक्स्ट वीडियो in the next video lecture we will talk about the calcium channel blocker. Thank you.